definitely हम day to day we come across so many frequencies, so many information, so many energy exchange. So somehow by the end of the day, or whenever we feel very not always stuck, but whenever we feel relaxed, we feel overwhelmed, we feel excited, we feel some happiness. Whenever our frequency gets higher, in positive or minus, anyway, positive or negative, we want to share it with someone. Hello, Ma. How are you? Hi, Pala, I'm fine. How are you? I'm also good. How are Great. you doing? Yeah, that's doing great. So many cases, so many relationship issues. Nowadays, there is a pandemic. Here we can say there is the relationship are in a big crisis. So I think this brings me to the topic of today's podcast. क्योंकि now I think so this is our 10th podcast, by the way. So I feel like I was very proud when I realized that today we are recording a 10th podcast. And इस journey में I've been like I've been very grateful to receive so many messages from people around me who have thanked me for starting this podcast because some of the episodes they found very relatable and I was very happy to see that. और अभी कुछ कुछ questions हैं जो मेरे पास आए हैं and like also not just directly questions but also for example some discussions which I've had with people about like what views they had about some of our podcasts. So I would like to like discuss some of them and these are related to relationships. So which is why like this is the topic of today's podcast. Okay. So I mean I want to start this with a very uh, basic question कि जो भी हम मतलब we know that we are social living beings है ना, we need to interact with people, we can't just be in our cocoon, right? So and I think as we grow older, we realize that the most basic need because of which like we talk to people is because we need some emotional support है ना, क्योंकि हमें लगता है कि मतलब करियर और अपने करियर के लिए काम करना, अपने करियर पर फोकस करना, ये सब चीजें हम कर लेते हैं खुद, बट हमें ऐसा कभी कभी बहुत फील होता है कि कोई ऐसा हो पर्सन मतलब जिसको हम सारी दिन की बातें बताए हैं ना, तो हमें ऐसा कभी कभी फील होता है कि यार मतलब मैं बाकी सब मेहनत कर लूंगी पर काश कभी तो कोई ऐसा हो ना मतलब जिसको मैं पूरी दिन की सारी बातें अपनी बताऊं या जिसको थोड़ा फर्क पड़ता हो कि मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको थोड़ी मेरी बातें सुनने में इंटरेस्ट हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है एंड आई फील लाइक दैट इज वाई लाइक व्हेन वी लुक फॉर अ पार्टनर या कोई not just a relationship but like even friends or like for example family, the person can be anyone, right? बस जिसको हम सारी पूरी दिन की बातें बताएं. So do you feel like this is a very basic need like to just have someone for emotional support? And is it like okay? Is it completely normal? Because I personally don't feel like there is any issue with like wanting someone, even if you are self sufficient. जैसे हमने पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया है ना, being your own good friend, being self sufficient, being happy in your own company, all that is fine. But कभी कभी हमें ऐसा नीड होती है कि कोई और भी हो. बिल्कुल बिल्कुल होता है पर मैन मतलब मैन इज अ सोशल बीइंग, मैं सोशल एनिमल है ना. सो डेफिनेटली हम डे टू डे वी कम अक्रॉस सो मेनी फ्रीक्वेंसीज, सो मेनी इंफॉर्मेशन, सो मेनी एनर्जी एक्सचेंज. So somehow by the end of the day, or whenever we feel very not always stuck, but whenever we feel relaxed, we feel overwhelmed, we feel excited, we feel some happiness. Whenever our frequency gets higher, in positive or minus, anyway, positive or negative, we want to share it with someone. So it is a social, and even if we do not have this kind of sensations and this kind of urges, then it is called sometimes emotional numbness. Hmm. So Right. it's very natural. So it's very natural that we everyone wants to share the energy with someone. एंड डू यू फील लाइक ओवर टाइम जब हम छोटे होते हैं तो तब लाइक वी हैव आवर पेरेंट्स है ना जिनसे हम सब शेयर कर सकते हैं, बट देन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम वी समटाइम्स माइट फील कि हम सब कुछ शेयर नहीं कर सकते उनके साथ, या ऑल्सो दे माइट ऑल्सो नॉट बी इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू एवरी स्मॉल थिंग अबाउट आवर डे, मतलब दे ऑल्सो हैव लाइक लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक आफ्टर. सो जब हम फ्रेंड्स के पास जाते हैं लाइक वी टॉक टू देम, बट देन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आई थिंक स्पेशली 20s की एज में कभी कभी ऐसे भी लगता है कि यार फ्रेंड्स भी ठीक है पर वो लोग भी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो कोई एक पर्सन हो जो सिर्फ मेरा हो, लाइक द पर्सन लाइक हु There जस्ट should be वेट्स फॉर माय. someone या. there should be someone that should be more than a friend. राइट. Yeah. सो देन I feel like it is so interesting to think कि how do you differentiate or like what makes it more than a friendship, and like in a healthy way, like it's not something, it's not the reason that you're looking for someone is not because of say physical needs or like
maybe you just want to like monetary needs, like you just want someone like who's financially independent, you want to be someone. It's not about that, like just an emotional cushioning, which is like as pure as it can be. So how do you think of this as like a transition from friendship? ऐसा क्या अलग क्वालिटीज हमें देखनी होती है ऐसे किसी में, या हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ मतलब इसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली पहले क्या होता है कि इट इज वेरी नेचुरल, है ना, इट्स ए नेचुरल अर्ज, है ना, वी कांट से देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट जो भी जब भी हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो हमारे रिलेशनशिप के तीन बेसिस होते हैं बेसिकली. हम्म। तो इनिशियली वी स्टार्ट फ्रॉम दैट डायरेक्शन एंड वी वांट सम अटेंशन, वी वांट सम एप्रिसिएशन, वी हैव अ वॉइड. जैसे जब तुमने बताया कि जब छोटे होते हैं तो डेफिनेटली वी हैव सिक्स पॉकेट्स, मतलब भी हम घर में दादा दादी नाना नानी बुआ सब लोग, मम्मी पापा सभी लोग बातें करते हैं. बेशक न्यूक्लियर फैमिली है लेकिन फोन पे भी सब छोटे बच्चों से बात करना पसंद करते हैं. लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हम थोड़े थोड़े अपने ही स्पेस में आना शुरू हो जाते हैं. और जैसे जैसे हमारा वो स्पेस थोड़ा सा और श्रिंक होता है तो वैसे वैसे हमारे साथ जो शेयरिंग वाले लोग हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं. तो वी वांट समवन जो मुझे ना मेरे हिसाब से, मेरे वर्जन के हिसाब से सुने, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हम पेरेंट्स से कोई बात कहेंगे, "हाँ, ऐसा सब होता है, ठीक है छोड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो", है ना. तो हमारे बहुत सारे अंदर के आंसर्स हैं, बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो हम बहुत ही डिटेल में और बिल्कुल अपने अपने वर्जन के हिसाब से शेयर करना, और उसके साथ जो मेरी बातों को मेरे हिसाब से बिना किसी जजमेंट के सुने. ऐसा कोई पर्सन चाहिए जो मुझे सिर्फ मेरे अंदर क्या क्या गुड चीजें हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं उसलिए नहीं, जो मेरी सारी नेगेटिव चीजों को भी झेलने के लिए तैयार हो, है ना. इस रिलेशनशिप इज लाइक ए कंप्लीट पैकेज. तो जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि हम किसी के साथ भी रिलेशनशिप करते हैं इसीलिए कि आफ्टर अ बिजी शेड्यूल वी वांट सम रिलैक्सेशन. हमें ऐसा चाहिए कि किसी के कंधे पे सर रखो और ऐसा लगे कि चाहे वो सामने ही बैठा है लेकिन मैं हल्का हल्का बादलों के ऊपर उड़ रही हूँ, हम दोनों कोई बात नहीं कर रहे लेकिन एक दूसरे के प्रेजेंस भी ना बहुत ही ज्यादा हीलिंग है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी फील हो रही है. पर जैसे आजकल मैं देखती हूँ कि आई थिंक दिस इज आई थिंक द आइडियल वे। पर जैसे हम आजकल बहुत देखते हैं कि लोग कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं, सिचुएशनशिप्स में रहते हैं ना, कि वेर आई डोंट नो, लाइक आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड इट इज जस्ट दे वांट टू टेल themselves कि हाँ मतलब मेरे पास कोई है, सो दैट व्हेन यू आर एट दैट स्टेज वेयर यू आर हसलिंग सो मच फॉर योर करियर, है ना, यू आर वर्किंग ऑन योर फिटनेस, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू मैनेज, यू आर नाउ बिकमिंग एन एडल्ट, सो एंड देन यू फील लाइक कोई एक मेरा पार्टनर भी है, कोई एक है पर्सन जो इमोशनली भी मुझे केटर कर सकता है, सो यू ऑल्सो फील सेटिस्फाइड कि मतलब आई थिंक आई हैव मैनेज एवरीथिंग वेल। बट आई थिंक उसकी वजह से हम कभी कभी जल्दबाजी कर देते हैं ना, मतलब हमें लगता है कि हाँ ठीक है, अब चलो ठीक है, अभी फिलहाल हमें ये पसंद मिल गया तो ठीक है, इसलिए लोग इतने सारे कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि it's so important to understand कि when you are trying to be with someone, so you like that person for who they are, or you are falling in love with how they are treating you. There are two different things. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान है वो आपसे बहुत ही अच्छे से बात करता है हमेशा, बट इफ यू फील कि वो एज अ पर्सन मतलब वो अपने बाकी के स्फीयर्स में बहुत सारे अभी डिस्टॉर्शंस है, मतलब वो बस आपके साथ बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा है, बट यू कैन नॉट सी अ फ्यूचर विद देम, सो दैट इज ऑल्सो अ डिफरेंट थिंग। और कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं जो दूर से देखने में एकदम परफेक्ट लगते हैं कि मतलब यार ये तो एकदम परफेक्ट है, ये सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रहा है, सबसे कितने अच्छे से बात करता है, बट यू रियलाइज कि ही हैज नो स्पेशल फीलिंग्स फॉर यू, मतलब वो सबके साथ ही ऐसे अच्छे से बात कर रहा है, तो ऐसे नहीं है कि लाइक ही इज लाइक देयर समथिंग व्हिच इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। सो व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर थिंग टू हैव, लाइक? But it's like that कि मतलब अगर मान लीजिए कि मेरे को बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, और घर पे खाना बनने में थोड़ा वक्त लग रहा है, मुझे थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, एंड आई जस्ट गो टू द नियर बाय मार्केट एंड आई जस्ट सी द स्ट्रीट फूड एंड आई जस्ट ईट वॉट एवर इज रेडी देयर, वॉट एवर इज अवेलेबल देयर, है ना. वंस इन अ while तो इट्स ओके, चलिए, लेकिन इफ आई मेक इट अ सॉल्यूशन देन इट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन, और समटाइम इट कैन डैमेज मी अनएक्सपेक्टेडली, है ना. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें ना, जब भी हमें अकेलापन महसूस होता है, समटाइम वी नीड सम डोपामीन, और इस तरीके से सिचुएशनशिप्स होती हैं और कैजुअल रिलेशनशिप्स होती हैं, इसमें हमें कुछ कुछ देर के लिए तो हम कंपेंसेट कर लेते हैं अपने उस अकेलेपन को, अपनी उस कमी को. लेकिन अगर हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट से देखें तो इन सब में ना जितनी ज्यादा वैरायटी होती है उतनी ज्यादा ना हमें अलग अलग काइंड ऑफ ट्रॉमास भी अट्रैक्ट
हम्म एंड एक पैटर्न ऐसा बन जाता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम वी जस्ट लाइक अ स्पाइरल वी अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक पर्सन आफ्टर ईच एंड एवरी इंटरवल. आई हैव सीन so many cases where the girls are in relationship after at 6 times 7 times and every time they have different kind of but the same betrayal pattern है ना. तो ये सारी चीजें मतलब दे आर टेम्पररी. हम्म लेकिन अगर हमें परमानेंट चाहिए ना तो वी शुड वेट. कहते हैं ना सहज पके सो मीठा हो. तो वी शुड वेट फॉर समवन जो कि हमें ना हमारे सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं, सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पे उससे ऊपर नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पे जो दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करें. हम्म तो आई थिंक दैट इज बेटर. हाँ ये एक ये टेम्परेरी सॉल्यूशन तो है लेकिन एक परमानेंट टेम्परेरी सब्स्टिट्यूशन तो है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत. साइड इफेक्ट्स जैसे एक तो मैं जितना सोच पा रही हूँ कि जैसे हम देखते हैं कि अगर हम एक बार किसी के साथ इमोशनली जुड़ जाते हैं उसके बाद फिर अगर वो पर्सन फिर बाद में चला जाता है बट देन वी फाइंड इट हार्डर देन अर्लियर टू स्टे अलोन, क्योंकि हमें वो आदत नहीं रहती, हमें वो कुशनिंग जोन की आदत पड़ जाती है. सो लाइक आई थिंक लाइक इट मेक्स यू मोर हैंडीकैप. लाइक आई फील कि अब आप नहीं रह पाओगे अकेले, जो आप पहले शायद फिर भी आप रह पाते थे. डू हाँ यू एग्री एंड लाइक व्हाट आर द अदर साइड इफेक्ट? पर मैंने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहाँ पे मैंने ऐसे देखा कि एक मतलब यू कैन बिलीव कि 7th 8th की लड़की और उसको सब लोग ना स्लट बोलते थे. 7th 8th क्लास की लड़की. तो जब मैं उस केस में डीप में गई तो मुझे पता चला कि उसकी ना मम्मा बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी और शी हैड अ बिग वॉइड. तो उसको कोई ना कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो उसको थोड़ा अटेंशन दे. तो वो जब भी रोज घर में पिटती तो वो बाहर जाके किसी बॉय के साथ वो अटेंशन लेती है और वो अटेंशन में बहुत आगे बढ़ जाती. कुछ दिनों बाद वो रिलेशनशिप खत्म होती. लेकिन अब वो इमोशनली ना दो रास्ते होते हैं. जब एक बच्चा गिरता है तो दो रास्ते हैं. या तो उठ के खुद मजबूती से चलना सीखो, अपने गुस्से को ऐसे प्रोसेस करो कि अब आप अपने आप को एक्सक्लूसिव बना लो. हम्म लेकिन दूसरा रास्ता यू बिहेव लाइक अ रिकटी बेबी कि बस कोई भी आए और वो मुझे हाथ पकड़े और मुझे आगे चलाए. और जब एक दो लोगों का हम इस तरह से हाथ पकड़ के आगे चलते हैं तो एक बार एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं. हमें सेल्फ डाउट हो जाता है. हमें लगता है कि हमें तो किसी के सहारे के बिना हम चल ही नहीं सकते. हम्म तो विच इज लाइक अ रिक्ति बेबी. और हमें एक कदम भी चलने के लिए किसी का सहारा चाहिए. इसीलिए होता है कि जब कई लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं और वो सिमिलर पैटर्न अटैक करते हैं तो वो हम्म अंदर से अपने आप को इतना सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि आई कैंट सर्वाइव, कि कई बार वो सेल्फ डैमेज सेल्फ हार्म भी कर लेते हैं. है हम्म ना. तो किसी का हाथ पकड़ के चलना इट्स अ सिंबल, इट्स अ साइड इफेक्ट, इट्स लाइक अ रिक्ति बेबी कि आप इमोशनली दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं और आप अपने लिए सेल्फ डाउट में आ रहे हैं कि यू कांट बी इंडिपेंडेंट साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली एज वेल. हम्म. बट देन आई ऑल्सो फील दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. हाँ कि मतलब आप दूसरे को कितना ज्यादा कंट्रोल दे रहे हो अपने इमोशंस का, अपनी लाइफ का. बट देन हाउ डू यू लाइक डिसाइड when is the right time to be a little bit more open, because ultimately you do want to find someone. and so मतलब when do you decide कि मैं कितना ओपन हो सकती हूँ और मैं कितना शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जैसे कि आई थिंक हमने पहले भी ये काफी काफी बार डिस्कस किया था ना कि when यू आर ट्राइंग टू बी ओपन विद समवन बट देन हम कभी कभी बहुत अपनी वल्नरेबल चीजें भी शेयर कर देते हैं बहुत ज्यादा, एंड देन यू नेवर नो कि वो आगे मतलब कैसे उसका उसका क्या साइड इफेक्ट होगा. सो मतलब how do you feel as a relationship counselor, like you see that a relationship should heal your insecurities, or like but it should not expose them, है ना? It should not be something which is made fun of, like in every conversation that is brought back and then that is being like targeted at you. So how do you suggest like we should manage that thing? कि you need to be you need to be true to the person, but you still need to be mindful कि मैं सब कुछ ना शेयर करूँ. पर हाँ पर ऐसा एक केस मेरे पास है जिसमें मतलब दे वर इन रिलेशनशिप सिंस लास्ट 8 years, सिंस क्लास 10. और अभी किसी वजह से जो मेल था ही इज नाउ डेटिंग समवन एल्स. तो कभी लड़की ने उसको बताया होगा उसकी वाइफ ने कि अरे कभी गुस्से में कह दिया होगा जब उसकी चीटिंग पकड़ी गई थी कि तुमसे तो अच्छा, मान लीजिए XYZ की मेरी क्लास का वो हिमांशु था या समीर था, है ना, कि तुमसे तो अच्छा वो था. ने जब उसकी चीटिंग पकड़ी तो उसने सिंपली बोल दिया कि इससे तुमसे तो अच्छा वो था, कम से कम शायद वो मुझे चीट ना करता. तो लड़के ने उसी बात को एडिट करके अब जो उसको खुद ही कहीं और जाना था तो उसकी उसी चीज पर केस बना दिया है. उस चीज के लिए ना दोबारा से उससे जानबूझ के वो बातों बातों भी कंस्पायर करके कि वो वर्ड बुलवाया गया और फिर उसी को केस बना दे कि मैं तो उससे शादी करती. है ना. तो ये किसी भी रिलेशनशिप में ना बहुत ही ज्यादा गलत स्ट्रेटेजी है
एक्चुअली हकीकत तो पल ये है कि कितना भी कह लो कि हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से या किसी भी रिलेशनशिप में हमें एक दूसरे से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए। हम्म। लेकिन हम सबके अंदर ना एक 5%, हम हर किसी को सेम पेडेस्टल पे नहीं रखते हैं। कुछ लोगों के साथ हम उतना ही शेयर करते हैं ना जितना 10%, 5% जितना होता है प्रैक्टिकल। लेकिन हमारे यहाँ सभी के अंदर ना, चाहे कोई कहे या ना कहे, 5% एक ऐसा भी स्टफ होता है जो सिर्फ हमें पता होता है, जो हम कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। एंड हम्म। आई थिंक वो करना भी नहीं चाहिए। इतना स्पेस तो अपने लिए जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम्म। अगर हम अपनी हर एक बात शेयर कर देते हैं तो वो रिलेशनशिप ना सक्सेसफुल रह ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी, है कोई एक बहुत बड़ी पोएट है, पोइटेस है, बहुत ही फेमस है ना। तो अभी उनके साथ एक डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि जैसे यू आर वर्ल्ड रिनाउंड पोइटेस, तो एंड यू आर सो मतलब एकदम डिग्निफाइड लेडी, तो क्या ऐसा कभी हुआ अभी पिछले 10 साल में, 15 साल में, कि जैसे आपने किसी को देखा और आपको ऐसा लगा कि मतलब ही सच ए नाइस पर्सन, और आपकी कोई फीलिंग आई हो उसके लिए? तो शी सेड यस, कोई भी अच्छी चीज होती है तो ह्यूमन नेचर ना बेसिकली ऐसी है कि किसी भी अच्छे पर्सन को देखो तो हमारे अंदर से एक फीलिंग्स तो आती हैं। लेकिन फीलिंग्स आना भी, जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत सुंदर एक्ट्रेस है, मान लीजिए, अब मान लो ऐश्वर्या राय, उनको कोई भी देख लें, वो इतनी खूबसूरत है, पूरी एक ब्यूटी आइकन है, तो उन्हें कोई भी देखे तो एकदम फीलिंग आएगी ना कि हाय कितनी सुंदर है ना। तो सबके अंदर एक, हर एक सुंदर चीज के लिए तो होता है कि काश ये मेरे पास होती है चीज, है ना। एक ये सब फीलिंग तो आती है, लेकिन फीलिंग आना बल्कि ना आए तो वो एक प्रॉब्लम है। तो फीलिंग आना इट्स ओके, लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि हम उसको कितना कैसे प्रोसेस करें उस फीलिंग को, है ना। और अच्छी चीज ये तो होती है कि हम सिचुएशन के हिसाब से और मर्यादा के हिसाब से और एक माइंडफुल वे से चले, ना कि सिर्फ इमोशनल फूल होकर, है ना। क्योंकि कहते हैं कि जब जब समुद्र के आसपास बांध टूट जाता है किसी डैम में, तब तब बाढ़ तो जरूर आती है। राइट। मुझे इससे एक और क्वेश्चन याद आया अभी जब आप बता रहे थे ये, कि जैसे हम ये देखते हैं कि अगर जब तक हम किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं होते, सो वी आर वेरी ओपन इन द सेंस, मतलब हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, मतलब हमारा एक सोशल सर्कल होता है। पर मैंने ये नोटिस किया है काफी बार कि जब हम किसी एक पर्सन के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम बाकी सारे जो हमारा सोशल सर्कल होता है ना, हम उससे विड्रॉ करने लगते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोगों को नोटिस किया है। और आई डोंट नो, मतलब यू डेफिनेटली like spending time with that person more than you like spending time with other people, which makes sense. But do you feel that that balance is necessary, that you should also have your own social circle? And how do you balance your time, like both these things? या मतलब ऐसे क्यों होता है, आपको क्या लगता है, और इसके इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? पहले इसको ना बहुत ही एक ऐसा मैं लाइव एग्जांपल से बताना चाहूंगी कि सपोज कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इट्स माय न्यू अटायर, इट्स माय न्यू साड़ी, है ना, और मुझे अभी, मैं इतनी ओवरवेलमिंग हूँ कि अभी मेरे को बहुत ही ज्यादा इसके साथ मेरी एनर्जी जुड़ी हुई है। तो मैं मैक्सिमम इसी को ध्यान में रखूंगी जब भी मुझे कहीं इनिशियली जाना होगा, है ना। तो इसी तरह जो हमारा एक, जब हम यानी किसी के साथ बहुत ज्यादा वाइब्स मिल जाती हैं, तो हमें उससे बेहतर ना किसी के साथ भी रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। लेकिन कभी कभी ना हमें बैलेंस, जो तुमने कहा, ये बैलेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मान लीजिए कि अगर एक कपल की शादी हुई है, लड़की पहले बहुत सोशल है, ये लड़का बहुत सोशल है, और वो बाद में सिर्फ एक दूसरे, एक मून बन गया और एक धुरी उसके चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, या घूम रहे हैं, और फिर वहां पे कोई किसी से फोन पे भी बात कर लेते हैं, तो बहुत बड़ा क्योस हो जाता है कि तुम, जब मैं यहाँ हूं तुम किससे बात कर रहे हो। तो बहुत ज्यादा ओवर पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी आ जाती है। मुझे लगता है दिस इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। हो सकता है कि मतलब अब जैसे माय हस्बैंड, मुझे बहुत अच्छा, मतलब उनके साथ रहना ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन आई जस्ट कीप माय हैंड लाइक दिस एंड आई जस्ट स्टे काम। तो आई लव दिस। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि मुझे जिनके साथ एज अ हस्बैंड रहना अच्छा लगे। क्या पता कोई मेरा कॉफी पार्टनर हो, क्या पता कोई मेल या फीमेल ऐसी हो जिसके साथ मुझे बाहर जाके हल्दीराम पे कुछ खा के आना अच्छा लगे। हो सकता है किसी के साथ मुझे शाम को यहाँ ऑफिस में बैठ के चाय पीना अच्छा लगे, चाहे वो मेरी रिसेप्शनिस्ट भी हो सकती है, मेरी मैनेजर हो सकती है, या हो सकते हैं कोई मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि हमें हर एक चीज एक ही जगह की पसंद है हम्म। ना। तो मैक्स, हाँ, लॉयल्टी अपनी जगह है, लेकिन हो सकता है कि हमें किसी के साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करना पसंद हो, किसी के साथ स्पिरिचुअल डिस्कशन, जैसे यू नो कि मेरे को स्पिरिचुअल डिस्कशन किसी एक पर्सन के साथ करना पसंद है, लेकिन अगर अलग इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है तो मुझे किसी और के साथ करना पसंद है। अगर फैमिली डिस्कशन है तो उसके लिए मैं कहीं और किसी के साथ करना पसंद है। तो अपने आप को ना उतनी बाउंड्रीज में मत बांधो कि आज वो आपके लिए ऑप्शनल है,
लेकिन कल को वो आपका बंधन बन जाए, और ये दोनों के लिए है। लेकिन हाँ, उस चीज को भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत ले। कहते हैं कि कभी भी रिलेशनशिप में ना जितने भी इश्यूज आते हैं, कभी भी थर्ड पर्सन की वजह से नेवर, कभी नहीं आते। रिलेशनशिप में जितने भी इश्यूज आते हैं, रिलेशनशिप इज ऑलवेज रेन्ड बाय एंटरटेनिंग थर्ड पर्सन, not because of third person. It is, it always comes because we entertain third person. तो इफ वी नो आवर बाउंड्रीज, अगर हमने एक बाउंड्री खींच दी, ठीक है भाई, मुझे आपके साथ शाम को चाय पीना बहुत पसंद है, हम चाय पियेंगे, बट वी हैव सर्टेन बाउंड्रीज एंड दीज बाउंड्रीज शुड नॉट बी वायलेटेड। तो अगर हम इस तरीके से चले तो हम एक बहुत अच्छा बैलेंस बना सकते हैं। जैसे लॉर्ड शिवा है, इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग, कि उन्होंने अपने अर्धनारीश्वर रूप में पूरे अपोजिट चीजों को साथ रखा हुआ है ना। गाय भी है और एक तरफ सर्प भी है ना। गंगा भी है और चांद भी है, चीता भी है। तो उन्होंने सबको एक साथ रखा हुआ है। तो वी शुड मैनेज दैट थिंग्स। जितना अच्छा, कहते हैं ना, एमबीए कर लो इमोशंस में, मैनेजिंग योर इमोशंस, बैलेंसिंग योर इमोशंस एंड अप्लाइंग इमोशंस इन एप्रोप्रिएट रेशियो। कभी कभी ओवर फ्लड भी बहुत भारी पड़ जाता है। हम्म तो अगर संतुलन है ना, तो लाइफ में एवरीथिंग इज गुड। तो जैसे आपने इस एग्जांपल में बस समझाया, तो इसमें ये एस्पेक्ट मुझे समझ आया कि इफ यू फील दैट the relationship is getting very possessive or like very binding, so it is important to balance. But what if the, like, how is it important for a given person? Like, if even if, like, for example, I'm not, I'm just so much like I'm always thinking about that person, और मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, मतलब मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं आ रहा है, मुझे खुद अपने साथ बैठना पसंद नहीं आ रहा है, so that is that a bad sign for me? मतलब even if like I'm not realizing it right now. हाँ, हाँ, इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। किसी को मिस करना एक अलग बात होती है, लेकिन अगर वो किसी, देखो, अगर वो इस वजह से हमसे अलग है क्योंकि वो भी हमसे बात करना ही नहीं चाहता, वो हमें थोड़ा सा ना शॉर्टेज स्कार्सिटी दिखा रहे टाइम की, तो उसके लिए दुखी होना बेकार है ना। और अगर कोई इसीलिए नहीं मिलना चाहता क्योंकि अभी वो बहुत बिजी चल रहा है, और जेन्युइनली हमें पता है कि वो एक पर्सन है जो कि अभी सच में बहुत बिजी है, तो उसके लिए अपसेट होना बिल्कुल ही गलत है। बिकॉज वी शुड बी इंटेलेक्चुअली मैच्योर। कहते हैं ना कि हम्म अब एक केस था, तो उसमें यही था कि लड़की ने मुझे बोला कि मैम, वी आर इन रिलेशनशिप सिंस लाइक 7 ईयर, और जितनी बार भी लड़ाई झगड़े हुए मैंने हमेशा इससे मनाया, पर इसने मुझे एक बार भी नहीं बनाया, तो मुझे लगता है ये हम्म तो भीख वाली रिलेशनशिप हो गई। हम्म तो एक बहुत अच्छी लाइन किसी ने लिखी कि वो वक्त निकाल के मिलता था, मेरा तो काम ही मिल रहा था, हम्म है ना। तो कभी भी अगर आप देखो कि हर बार फोन कॉल आपकी तरफ से जा रहा है, हर बार नेगोशिएशन आपकी तरफ से हो रहे हैं, हर बार इनिशिएटिव आप ही कर रहे हैं, है ना, हर बार कॉल बैक आप ही कर रहे हैं, हर बार सॉरी आपको बोलना पड़ रहा है, तो दिस इज वन साइडेड। और इस तरीके से जो एक अंदर एक सप्रेशन हो जाता है, एक टर्मोइल चलता है ना, फिर या तो वो सीवियर डिप्रेशन में निकलता है, या फिर वो सीवियर एक वॉल्केनो इरप्शन होता हम्म है ना। तो इसीलिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए उससे पहले ही संतुलन बनाना बहुत जरूरी Hmm. So there should be a balance in like how you're making it work, you're putting efforts, but you also have to observe if the other person is also trying to make an equal amount of efforts. And if you think like it's not balanced, it's not equal, then it's better to listen to yourself, to and like to know that to know your worth, है ना, and just move out of that situation, because you have, when you believe that you deserve better, only then you can make things better, है ना। अगर जैसे अब आपने ये एग्जांपल में बताया, like if the person is okay with dragging it, like they have been dragging it for the past 5 7 years, so it is not going to get any better in the future, because like now they've accepted that that is how it is. But if you take a call for yourself, and if you know that you deserve better, then यू कैन मेक अ चेंज, यू आर फ्री टू मूव आउट। मतलब जैसे जैसे अगर आपने कोई प्लेन की टिकट लिया था, आपको पता है कि अभी क्रैश होने वाला है, पर आपने बहुत महंगी टिकट लिया है, आपने बिजनेस क्लास टिकट लिया है, तो अब ये थोड़ी है कि हम उसमें फिर भी बैठेंगे कि यार मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मैंने इतनी टिकट, अब तो मैंने इतनी महंगी ली है, तो मैं फिर भी बैठूंगी, नहीं बैठेंगे। कभी भी हम मूव आउट कर सकते हैं इफ यू फील कि इसका अल्टीमेट इसका रिजल्ट नहीं अच्छा होगा आपके लिए। तो इसीलिए है। आई लाइक, थिंक। हम्म whenever you feel that there are some red flags or some challenges, though we should not never ever think it, okay, let's move out. First, we should try to fix the situation by discussing openly, है राइट। ना। लेकिन वो दोनों तरफ से होना चाहिए, है हम्म ना। ऐसे नहीं कि चलो एक बार डिस्कशन का मौका मिल जाए, ये मेरे को परमिशन दे दे साथ में रहने की और मैं रह लूं कैसे भी करके, हम्म एक बार मैं घर में रह लूं, मैं आगे से ऐसी गलतियां। रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए। कल ही मेरा किसी से बहुत डीप डिस्कशन चल रहा था, तो ही सेड कि मैम, रिलेशन जो एक
ट्रू रिलेशनशिप होती है उसमें तो हमें माइंडफुलनेस बिल्कुल यूज नहीं करनी चाहिए। उसमें तो बस इमोशंस और ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहिए, फिर वो तो एक ना व्यापार हो गया, वो तो एक बिजनेस हो गया। मैंने कहा नहीं, जो एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप होती है ना, जो सस्टेनेबल हो, अच्छी भी चले, तो उसमें तो ज्यादा माइंडफुल होने की जरूरत है। एक्चुअली माइंडफुल डजंट मीन कि आप किसी के लिए कॉन्स्पिरेसी करो, Yeah, no, आप चाले it is करो, not, it is आप not the same as cunning. It is, कनिंगनेस। yeah. हाँ, कि डजंट मीन माइंडफुलनेस कि आपको पता हो सारी चीजों का, कि हमें किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को ऐसे संतुलित करना है हम्म। कि इस पर भाई बाहर का कोई भी इफेक्ट ना पड़े, है ना। और वो तो विजडम इस के लिए ही, जैसे हमने जो हाँ, पहले पॉडकास्ट में डिस्कस किया अबाउट सेल्फ अवेयरनेस, है ना, अबाउट वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ, ये सब होमवर्क करना, यही तो होमवर्क है ना, मतलब रिलेशनशिप में आने से पहले। बिकॉज जब बाद में ऐसी चीजें होती है एंड देन पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप अप, जैसे ब्रेकअप के बाद पीपल फाइंड इट सो डिफिकल्ट टू मूव ऑन, है ना, टू, बिकॉज दे फील दे आर सो हर्ट, दे आर सो वोंडेड। बट अगर हम ये होमवर्क पहले से करेंगे, वी नो हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ दिस। बिकॉज मतलब हम कितना भी प्रिपेयर कर ले, बट दीज थिंग्स कैन हैपन बिकॉज दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन, है ना। वी कैन बी वेरी माइंडफुल इन whom we are choosing, but we can not control what the other person is doing. So even if we get hurt, even if these things happen, then we will know how to manage all of this, क्योंकि हमने अपने ऊपर काम किया है और हमें पता है कि मेरी सेल्फ वर्थ कितनी है, एंड आई कैन नॉट अलाउ समवन टू हार्म मी मोर देन अ सर्टेन एक्सटेंट। जब हमें वो बल्कि एक बाउंड्री अच्छा सेट पता पार्टनर होती होता है। है, हाँ। एक जो अच्छा पार्टनर होता है ना, उसको हमें कभी बताना नहीं पड़ता कि दिस इज माई सेल्फ वर्थ की, और कहते हैं ना कि साडा हक तेरा, कैसे नहीं हम्म। होता है। जो एक अच्छा पार्टनर होता है ना, तो वो ये होता है कि इफ यू आर जस्ट कंप्रोमाइजिंग विद योर कंफर्ट जोन, देन ही से नो, हम्म। ऐसा नहीं करने दूंगा, पहले अपना पूरा ध्यान रखो, तुम हम्म। ऐसा नहीं कर सकते, है ना। हम्म। आई नो दिस काइंड ऑफ क्लाइंट्स ऑल्सो, कि जैसे एक है, उनको बहुत फिजिकल इश्यूज हैं, तो वो अपनी हीलिंग के लिए आती है, तो उनके हस्बैंड ही इज टू बिजी, पर ही सच ए जैम पर्सन कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल नहीं, फोन पे भी कि नहीं तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, मैं ही आके करूंगा, मैं ही आके करूंगा, और बहुत ज्यादा डांटते हैं कि नहीं तुम कुछ नहीं करोगी, तुम कुछ नहीं करोगी। तो दिस इज सच ए गुड थिंग, कि मतलब एक डिवाइन लव, है ना। तो कहते हैं ना कि चांद तारे ना ये रंग वो चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए, हम्म। है ना। तो रिलेशनशिप में मेटलिस्टिक नहीं हो, बेस नहीं होना चाहिए कि चलो मुझे ना इसके जैसे वो होता है ना, शुगर डैडी शुगर मॉम, कि चलो मुझे इससे इतना चीजें मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो हम्म। दिस इज जस्ट अ बिजनेस। हम्म। रिलेशनशिप तो होती है कि दोनों साथ में भी बैठे हुए हैं, कुछ बात नहीं कर रहे हैं, तो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, डोपामिन भर भर के मिल रहा है। तो दिस इज रिलेशनशिप जहाँ बहुत समय तक बात ना हो, पर ये पता है कि जब बात होगी तो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे छोड़ा था। हम्म। लेकिन एक पॉजिटिव वे में। राइट। Yes, I think I really enjoyed the discussion, क्योंकि especially because like this is the first time जहाँ पे मैंने और लोगों से बात करके जो queries वगैरह मेरे पास आई है, like हमने वो डिस्कस किया है, which I am very happy about. And also I feel like this was very useful because it is not just about talking about relationships in general. Relationships can not like just romantic relationships, है ना, मतलब it's also about your friends, how you treat other people. Yes, yes. एक Not just चीज about और the, है, हम कैसे चेक करेंगे कि मैं एक सही रिलेशनशिप में हूँ या नहीं। तो इसका एक बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि आप ना सोते समय अपने उस मोमेंट या उस पर्सन के साथ आज आपका दिन कैसा रहा, उन सब चीजों को जब एक आप टोटल करके देखोगे ना, तो जस्ट फील कि बस आंखें बंद करके कि आपकी बॉडी कैसा फील करती है। हम्म। यू आर फीलिंग लाइक betrayal, यू आर फीलिंग प्रेशर, स्ट्रेस्ड, और योर मसल्स आर एक्सपैंडिंग, you are feeling like wow, and हम्म। you're just planning, you are crazy. So just listen your body, how your body is reacting, and listen your this call. हम्म। Yes. Okay. Thank you so much for your time and for this discussion. Time, and dear viewers, those who are watching our podcast, you are requested to share your queries and your precious feedback, and we will try to make our podcast according to the topic that you will suggest us. Thank you so much for listening. Bye bye, pal. It's Thank nice. you. Bye. Welcome.